Let's we start our chapter second, question and answer session. The first question is fill in the blanks. Now look, in the first क्या है हमारे पास क्वेश्चन? फर्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, हम लोग सिर्फ एक माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन्हें देख सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज माइक्रोस्कोप. द सेकंड क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स. ब्लू ग्रीन एल्गी किसको फिक्स करती हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं. कहाँ होता है नाइट्रोजन? जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है उनको फिक्स करती हैं. इसमें नाइट्रोजन की कंपाउंड में फिक्स करती है, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरेला is caused by bacteria. It is a bacterial disease. कॉलेरा किसकी वजह से होता है? हमें बैक्टीरिया की वजह से कॉलेरा होता है. The next question is pick the correct answer. Yeast is used in production of. किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? चैट में रिप्लाई करके मुझे आंसर बताओ किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन इसके प्रोडक्शन में यूज होता है. गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स. यस, एनीवन इज देयर? नो वन नो द आंसर? यस, शोभा पारिक, अल्कोहल. Now look, the correct answer is alcohol. Very good. Now the next question is the following is an antibiotic and the options are sodium bicarbonate, streptomycin, alcohol and yeast. Give your answer in chat. Which option is the correct? Sodium bicarbonate, streptomycin, alcohol or yeast? Which one is the correct answer? Yes, fast reply in answer. No one. The correct answer Shobha Parik, sodium bicarbonate. No, this is the wrong answer. Anyone? The correct answer is streptomycin. Streptomycin is the correct answer. Now look for the next question. Carrier of malaria causing protozoa is. जिस प्रोटोजोआ की वजह से हमें मलेरिया होता है उसका कैरियर कौन होता है? ऑप्शंस आर द फीमेल एंटेबॉल मॉस्किटो, सेकंड कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई, फोर्थ बटरफ्लाई. विच वन इज द करेक्ट आंसर? रिप्लाई इन चैट. विच वन इज द करेक्ट आंसर? First, second, third or fourth? Which one is the correct? So the correct answer is the female antelope mosquito. Now the next question. The most common carrier of communicable diseases. Communicable disease मतलब जो संक्रमण होता है एक दूसरे से टच होने से फैलती है हमारे पास में. The answers are ant, housefly, dragonfly, spider. Reply in chat. Which one is the correct answer? अतुल्या ठाकुर replying cockroach. वो तो हो चुका है हमारा क्वेश्चन. Now for the question D. शोभा पारिक replying housefly. Now look, which one is the answer? Yes, housefly is the correct answer. Our next question is The bread or idli dot rises because. ब्रेड और इडली के लिए जो हम लोग डॉट बनाते हैं वो फूल जाता है. वो किसकी वजह से फूल जाता है? हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल और नीडिंग. किसकी वजह से ऐसा होता है? रिप्लाई और आंसर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? एनीवन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट
Shobha is the third answer. Yes. And the correct answer. Growth of this cell. Now our last question is that the process of conversion of sugar into alcohol is called. शुगर को हमें अल्कोहल में चेंज करना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? It is known as nitrogen fixation, molding, fermentation or infections. Just reply your answer in chat. अतुल्या बहुत देर से आंसर दे रहे हो. Shobha replying the third. Atulya first. The correct answer is the third, fermentation. Now go for the next question. Match the column 1 and 2. Bacteria. बैक्टीरिया कॉलम 1 से बैक्टीरिया है, कॉलम 2 में हमें उसको मैच करना है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया कॉजिंग क्लोरेला. नेक्स्ट वन इज द राइजोबियम. Rhizobium is involved in fixing nitrogen. Now tell me the answer for the lactobacillus. For the lactobacillus, which option is the correct? Find out B, C, D, F or G. Reply in chat. For the lactobacillus, which one is the correct? B, C, D, F or G? For the lactobacillus, the correct is setting of curd. Now tell me for the fourth, for the yeast. Tell me for the fourth, yeast. The correct answer is the baking of bread. Baking of bread. Now the next question for fifth, a protozoa. For a protozoa, which one is the correct answer? Causing malaria, causing AIDS, or producing antibodies? Which one is the correct for the protozoa? D. Yes, answer D is the correct, causing malaria. Now the last one is the virus. For the virus, which one is the correct answer? For the virus, that is the causing AIDS is the correct answer. So these are our correct answers. Now the next question, can microorganisms be seen with the naked eyes? If not, how can they be seen? Microorganisms cannot be seen by the naked eyes. So answer is a no. हम लोग इनको किससे देखते हैं? With the help of a microscope हम लोग इनको देख सकते हैं. खुली हुई आंखों से हम लोग इनको नहीं देख सकते. The next question is what are the major groups of microorganisms? Microorganisms के मेजर ग्रुप्स कौन से हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है. कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है बैक्टीरिया, सेकंड होता है हमारे पास फंगाई, थर्ड होता है प्रोटोजोआ एंड फोर्थ होता है एल्गी. These are the 4 major classification of microorganisms. Now the next question is that name the microorganism which can fix atmospheric nitrogen in the soil. कौन फिक्स करता है? That is the rhizobium. The rhizobium and some blue-green algae is involved in the fixation of nitrogen. ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में सॉइल में फिक्स करने के काम में आते हैं. On the next question, write the 10 lines on the usefulness of microorganisms in our lives. हमारी डेली लाइफ में माइक्रोऑर्गेनिजम्स का क्या यूजफुलनेस है उसके ऊपर हमें 10 लाइन लिखना है. द फर्स्ट लाइन है बैक्टीरिया कॉज द डिके ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स. जिससे कि वो किस में चेंज हो जाते हैं? दोज आर कन्वर्टेड इन ह्यूमस. नेक्स्ट है बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. नेक्स्ट बैक्टीरिया विनेगर, कर्ड, चीज बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वन है बैक्टीरिया सीवीज डिस्पोजेबल. जो प्लांट्स होते हैं वहां पर ह्यूमन सीवीज को चेंज करते हैं. इसमें चेंज करते हैं? वो वेस्टेज में चेंज कर देंगे, उससे ह्यूमस क्रिएट हो जाएगा. यूजफुल फर्टिलाइजर में चेंज कर देंगे. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस में काम में आते हैं? हमारे पास वाइन बनाने में काम आते हैं, बेकिंग में काम आते हैं, पिकलिंग में काम आते हैं और फूड प्रोसेसिंग में हमें वो हेल्प करते हैं.
अल्कोहल फर्मेंटेशन में क्या होता है कि शुगर से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं विद हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसे हम लोग बीमारी के समय लेते हैं। बैक्टीरिया जो हमारी इंस्टेटाइन में प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं किसमें, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैनी वैक्सीन्स, बहुत सारी वैक्सीन्स हैं वो हम लोग किससे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाते हैं। जैसे पोलियो का वैक्सीन होता है। यीस्ट को हम लोग किस काम में लेते हैं, इडली बनाने में, भटूरा बनाने में, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री और केक बनाने में यीस्ट हमारे काम आता है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है। The next question is write a short paragraph on the harms caused by the microorganisms। अब क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की वजह से ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज हो जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलेरा है, टाइफाइड है। ऐसे क्या कर सकता है कि वो प्लांट में डिजीज कर सकता है, कैटल में कर सकता है। कैटल में, प्लांट्स में बहुत सारे टाइप की डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पॉसिबल हो सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमें क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग भी हो जाता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या करते हैं कि हमारी जो ब्रेड है या जो खाना हमारा रह गया है उसको भी खराब कर देते हैं। सो दीज आर द फैक्टर्स दो हार्म अस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are the antibiotics? What precautions may be taken while taking antibiotics? Antibiotics क्या होती हैं, हम लोग इनको किनसे बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हेल्प से बनाते हैं। ये क्या करती हैं, किल कर देती हैं, बैक्टीरिया को मार देंगी या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगी। उनको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, विदाउट द प्रिकॉशन ऑफ डॉक्टर हमें लेना ही नहीं चाहिए एंटीबायोटिक। सेकेंड क्या है हमारे पास में, द कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड। जैसे डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपको 3 दिन लेना है तो हमें 3 दिन ही वो मेडिसिन लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि हमने 1 दिन मेडिसिन ली फिर हमने मेडिसिन लेना बंद कर दिया। एंटीबायोटिक जो है ना, राइट अमाउंट में हमें लेनी है। डॉक्टर ने बोला है कि आपको पर डे 1 टैबलेट लेना है या 2 लेना है तो उतना ही हमें लेना है। डॉक्टर ने बोला जैसे 2 टैबलेट लेना है तो ऐसा नहीं करना है कि हमने किसी दिन 3 ले लिया, किसी दिन 1 ही टैबलेट लिया। और बहुत लंबे टाइम तक हमें वो एंटीबायोटिक नहीं लेनी है। लंबे टाइम तक जब एंटीबायोटिक हम लोग लेते हैं तो हमारी जो बॉडी के यूजफुल बैक्टीरिया है वो उनको भी किल कर देता है। सो दीज आर द प्रिकॉशंस। थैंक यू। दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ आवर सेकंड चैप्टर। थैंक यू।